बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ उम्मीद के साथ कि सब खैर से होंगे, खुश होंगे। आज वीडियो करते हैं जी शुरू। वीडियो को स्किप नहीं करिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज तो सुबह ही कवा बनेरे पे बैठ के ना तो हमें राग सुना रहे अपने। माँ दे हत्थ दियां गालां, घ्यो दियां नालां ते माँ दे हत्थ दियां मक्खन वालियां रोटियां सड़ गईयां ने अज चोपड़ियां होइयां छड़ियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਡੇ ਸ਼ਾਜ ਸੋਨੀ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਨੇ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਸੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕੱਜ ਛੜਿਆ ਸੋਨੀ रोटी ਦੇ ਨਾਲ। अम्मी जी बना रहे हैं सुबह का नाश्ता। जैसा कि आपको पता है माँ जी अपने सोने सोने हाथों से रोटियां हमें बना के खिलाते हैं। सुबह टाइम अम्मी जी नाश्ता बना रहे होते हैं तो साथ ही बैठ के ना गर्मा गर्म नाश्ता करते जाते हैं। नाश्ता करने वाला सबसे पहला पर्सन हमारा होता है जी आमिश। आमिश किसके साथ नाश्ता कर रहे हो, बताना पसंद करोगे? सालन केरा सालन मतलब बिरयानी जा तू लावा पूछ, सीरियस पूछ रही हैं। बोटियां ने और की नाल दही बोटियां दे विच की वो तो नहीं पता। पता तो बगैर ही खाई जा रहे हैं। मैं बोटियां खाती है रात दा तेन लाया सीधा। जैसा कि आपको पता है पिछली वीडियो में आपने देखा था, रात को मैंने बनाए थे टिंडे और गोश्त और बताया था कि हमारे घर में पसंद नहीं, ना आमिश खाता ना हमजा खाता। रात का हमने लगाया हुआ है इनको दा। बजी बिल्ली जब सर्व करने लगी ना इनको खाना, तो मैंने कहा इनको कहना कि कहते हैं पूछते हैं पहले क्या बनाया हुआ है। आमिश कहता है की पकाया, मैं कहीं कद्दू पकाए ने मेरे कद्दू गोश्त कद्दू गोश्त कह के ना इन्हों मतलब ही खवाए उंज पर डरे खाते ही टिंडे नहीं खाने इंज ना करना। रात दिन इन्होंने टिंडे गोश्त कद्दू गोश्त कह के खवाए ने, उन्होंने पता नहीं चलिया इंज कहते ना खाते नहीं खाते कुछ होया ना टिंडे खाते इन्होंने दा लगा है। आमिश टिंडे गोश्त खादी मैं बोटियां खादी हूं तू इंज कहना हूं दाल ओ वेख लो हूं नहीं खाते, रात तो खादी ही ना रोटी। राती बोटी खादी लैग पीस हो वेख फिर भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਸਾਲਨ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਰੇ ਬਾਂਦੇ ਟਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਛੱਡਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਈ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੇਮ ਥੋੜਾ ਕੱਦੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਚੰਗਾ ਫਰੀ ਦਾਲ ਆਇਆ ਨਾ ਕੱਦੂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ। ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਨਖਰੇ ਕਰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਸਾਲਨ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲੀ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਦੂ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਏ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਨ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਲਕੰਦ ਕਿਉਂ ਖਾਈ ਦੀ ਏ, ਕਾਹਦੋਂ ਨਾ ਖਾਈ ਦੀ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਕਹਾਵਤ। ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਲਕੰਦ ਕਿੰਨਾ ਖਾਈ ਦੀ, ਗਲਕੰਦ ਦੁੱਧ ਨਾ ਖਾਈ ਦੀ ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਖੋਤਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਲਕੰਦ ਕਿੰਨਾ ਖਾਈ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨਾ ਖਾਈ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਇੰਜ ਖਾਈ ਦੀ, ਖੋਤਾ ਇੰਜ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵਾਵਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਲਕੰਦ ਕਿੰਨਾ ਖਾਈ ਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹੋ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਜੋ ਖੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਨਾ ਪਤਾ, ਬਸ ਐ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਖੋਤਾ ਹੈ। ਕਹਾਵਤ ਹੀ ਬਣਾਈ ਨਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਖੋਤਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਟਿੰਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਇਆ। मैं क्या टिंडे खादे ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ, ਹਾਂ ਦਾਲ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ जो बच्ची को ਆਹੋ ਦਾਲ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ। मैं नाले क्या नहीं कहीं की पकाया ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੀ ਰਾਤੀ ਇਹਨੇ नहीं ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਹੈ, मैं तो नहीं गया ਕਿਹਾ ਸੀ नहीं गया ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦਈ ਹਾਂ ਬਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਹੈ। ਦੀਦੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹੀਂ ਕਿ ਕੱਦੂ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਪਕਾਇਆ, ਦਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਹੋਰੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ भी खा पी लिए। गलती कर ली है, सही बात है। आमिश को बता के अभी तो ये है कि हमने कद्दू भी बनाए होंगे तो उन्होंने कहना नहीं यार टिंडे ने ही खाना ही नहीं। गलती हो गई दस के, है ना, नहीं दसना चाहिए।
आज हम धोने लगे हैं जी चारपाइयाँ, अपनी मंजियाँ जिन पे हम रात को सोते हैं। आपको पता है नेरी शेरी जो है ना आती रही है कट्टा मट्टी, तो उसके साथ ना हमारी चारपाइयाँ वावा गंदी हो गई हुई हैं। बिस्तर हमने कल सारी मशीन लगा के धोए थे, तो आज हमने कहा कि चलो चारपाइयाँ धो लेते हैं। तो 4-5 हमारी चारपाइयाँ जो गंदी हो गई हुई हैं, ज़्यादा ना ये नेरी की वजह से हुई है, मट्टी ऊपर बड़ी हो गई हुई है, तो इसलिए हमारी ये धोने लगे हैं सारी। पानी जो हमने लगवाया हुआ है वो आया हुआ है, तो हमने कहा चलो सुबह सुबह ना धो लेते हैं। मंजी को पहले मैंने पानी से गीला किया है, एक खुले बर्तन में पानी ले लिया, इसमें हम डालेंगे सर्फ। सिर्फ पानी से नहीं धोना, अच्छे से जैसे कपड़े धोते हैं ना वैसे सर्फ के साथ धोना है। सर्फ को पानी में अच्छे से मिक्स करते हैं। लें जी, सर्फ हमारा मिक्स हो गया। ब्रश लेना है, सर्फ वाले पानी में डबो के ना ब्रश को, तो इस तरह हमने धोना है चारपाई को। महीने डेढ़ बाद हम चारपाइयाँ धोते ही धोते हैं। आजकल वैसे भी आपको पता है गर्मी का मौसम है, मक्खियाँ बड़ी होती हैं, थोड़ी सी भी कोई ऊपर चीज़ लग जाए ना मक्खियाँ जान ही नहीं छोड़ती। साथ इनके अंदर ना कट्टा मिट्टी भरा भर गया हुआ है। धूप तो चढ़ गई हुई है, लेकिन मज़ीद तेज धूप निकलने से पहले पहले हम धो लेते हैं। चारपाई धोनी है, अकेले नहीं धोनी, बजी बिल्ली भी मेरे साथ लगेगी। मैंने कहा थोड़ा सा पहले आपको दिखा लूँ ना, तो फिर मिल के फटाफट धो लेते हैं। ब्रश ये हमारा एक ही है, तो मैंने और बाजी बिल्ली ने मिल के धोनी है, जल्दी धुल जाएंगी। तो बाजी बिल्ली अभी गई है गवांडियों का ब्रश लेने, उनका ब्रश लेके आती है ना, फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा काम। और इनको अच्छे से रगड़ रगड़ के हमने मैल निकालनी ताकि महीना जो है ना एक धोए बगैर बाद में निकल जाए। वैसे अभी है मौसम नेरी उनका, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे ना ऊपर मक्खियाँ भी बैठ रही थी, तो गंदी लग रही थी। एक चारपाई हमारी धुल गई है। इसे इस तरह से दीवार के साथ लगा देते हैं। अभी यहाँ पे धूप आनी है, फिर सारा दिन इधर ही धूप में पड़ी रही, खुश्क हो जाएगी। सेम उसकी तरह की हमारी दूसरी चारपाई आ गई है। पहले सादे पानी के साथ चारपाई को गीला कर लेते हैं कि अंदर जो मिट्टी है मैल है ना वो उगल जाए, फिर बाद में सर्फ वाले पानी के साथ धोते हैं। और धोने से पहले ये इसकी जो पैंद है ना, कुछ लोग इसे पैंद कहते हैं पंजाबी में, कुछ लोग इसे धोने कहते हैं, हम इसे धोने कहते हैं। तो ये वाली रस्सी चारपाई की थोड़ी ढीली कर लेते हैं, इसे ढीला कर लेना तो यहाँ से भी थोड़ी सी चारपाई ढीली हो जाती है। ऐसे नहीं तो अकड़ी अकड़ी होती है, तो सही से मैल नहीं निकलती। थोड़ा इस रस्सी को ढीला करेंगे, यहाँ से भी थोड़ी सी ये ढीली होगी, तो ब्रश जो है ना अंदर सही से लगेगा और मिट्टी सारी सही से बाहर निकलेगी। मोबाइल को भी रखते हैं साइड पे, फटाफट से धो लें चारपाइयाँ। अभी तकरीबन सुबह के 8:30 बजे का टाइम हुआ है और धूप ऐसे सामने सूरज पा रहा है ना, तो गर्मी लगना शुरू हो गई है। तो मैंने कहा मोबाइल थोड़ा साइड पे रखते हैं, फटाफट धो लेते हैं, काम टाइम से ख़त्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपनी चारपाइयाँ अपनी मंजियाँ हमने धो ली हैं। 2 वो सामने खड़ी की हैं, 2 इधर, और धूप जो है ना वाह आज निकल आई है। चारपाइयाँ 4 धोते धोते हमें कह लें कि
1.5 से 2 घंटे लग गए थे और साथ साथ ही खुश्क होने लग गई थी। इतनी आज कड़क धूप लगी है। 2 मैंने इधर रखी हैं, 2 सामने रख दी। 4 हमारी चारपाइयाँ जो बाहर सेन में रखी जाती हैं, बाकी अंदर ही हैं। तो यही 4 जो है ना हमारी ज़्यादा गंदी हुई थी, इसलिए यही 2 ही हैं। चारपाइयाँ वैसे बेबा है हमारे घर, लेकिन जैसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है ना वो यही थी, तो यही गंदी हुई है। फिर यही हमने 2 दी हैं। बाकी आज सुबह सुबह बहुत गर्मी लग गई है, धूप वावा कड़क लग गई है। फिर देखते हैं सारा दिन कैसा गुजरता है हमारा। गंदम का ढेर जो यहाँ पे महीना हो गया वह हमारे सेहन में लगा हुआ था, फाइनली वो आज हो गया यहाँ से ख़त्म। और गंदम का जो ढेर लगा हुआ था वो सेल करने के लिए इधर ढेर लगाया हुआ था, जो हमने खानी होती है पूरा साल। वो तो आपको पता है, मैंने आपके साथ शेयर किया था। वो सारी हमने स्टोर करके प्रोलू में डाल के रख ली है। जो बच गई थी वो करनी थी सेल। महीना यहाँ पे ढेर लगा रहा है, यही इंतज़ार करते रहे कि थोड़ा बहुत रेट जो है ना चेंज हो जाए। बहुत कम गंदम का रेट था, तो इंतज़ार यही था थोड़ा बहुत गंदम का रेट बढ़ जाता है ना, फिर सेल करेंगे। जाहिर है किसानों ने खर्चा किया होता है, फिर थोड़ा होता है कि चले थोड़ा बहुत जो खर्चा है ना वो पूरा हो जाए। इंतज़ार किया बाहर आके, गंदम नेरी बदल शदल आते रहे हैं। ऊपर से जो है ना शापर वगैरह दे के हमने डांप दी हुई थी, लेकिन अभी आके ना थोड़ा लग रहा था कि रेट ज़्यादा नहीं होना, कम हो जाना है। तो फिर अब्बू जी ने कहा कि चलो ईद से पहले पहले सेल कर देते हैं। बाकी कितने की सेल हुई है, टोटल हमारी कितनी गंदम सेल हुई है, कितने की हुई है, वो सारा आप हमदा की वीडियो में देख लेना। उसने वीडियो बनाई है, हाँ कल ही उसकी वीडियो आएगी, उधर आप देख लेना। चारपाइयाँ जो हमने सुबह धोई थी, ये तो सुबह धोते धोते घंटे 1.5 में खुश्क हो गई, क्योंकि धूप इतनी तेज़ आज लगी हुई थी ना, तो साथ साथ ही खुश्क हो गई थी। अभी यहाँ पे छाँव में ला के लोडा वेला हुआ है, तो इनकी ये जो दोने पैंदे हमने थोड़ी ये वाली रस्सी हमने डीली की थी ना सबकी धोने के लिए, तो ये सारी अभी दोबारा से कस दी हैं दोने। 3 ये धोई थी, एक अभी अंदर ही है, वो भी अभी निकाल लेते हैं। मंजियाँ सुबह धो के तो दोपहर टाइम फिर आज ना थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी कि वाकई जो है ना गर्मी आ गई हुई है। दोपहर टाइम सो गई हूँ, सोए सोए मतलब ऐसा थकावट महसूस हो रही थी। बुरश के साथ आपको ब्रश फेर फेर के चारपाई हमने धोई हैं। शोल्डर बड़े ऐसा दर्द करने लग गए, तो याद नहीं था कि चारपाई धोई हैं। सोते सोते यही सोच रही थी कि इतने मतलब दर्द क्यों कर रहे हैं। बाद में याद आया, हाँ है आज तो हमने ब्रश फेर फेर के मंजियाँ धोई हैं, इसलिए जो है ना इतनी नींद भी आ रही है, थकावट भी महसूस हो रही है। अभी लोडा वेला हुआ है, उठ के बाहर आए हैं, फिर खाने पकाने का कुछ कर लेते हैं। और खाने में मैं आज बना रही हूँ जी भिंडियाँ। इस दफ़ा तो हमने ईद से पहले सिर्फ ये चारपाइयाँ धोई हैं ना, नहीं तो जब भी कोई ईद आती है ना तो माएँ पता क्या करती हैं कि कमरों की सफाइयाँ कर लो, कमरों में जितना भी सामान है बर्तन है वो उतार के धो लो, सारे कमरों का सामान निकाल के सफाइयाँ सफाइयाँ कर लो। क्यों? क्योंकि ईद आने वाली है। पूरा साल हमने घर में रहना होता है, तो ईद आने वाली है, उसने आके हमारी सफाइयाँ कमरों की चेक करनी होती है कि बर्तन साफ़ है, कपड़े साफ़ हैं, चदरें सामान सारा साफ़ है कमरों का कि नहीं। गर्मी है, अम्मी जी का प्लान है था कि मतलब कमरों की सफाइयाँ करें, बर्तन शर्तन सारे। आपको पता है हमारे कमरों में तो बर्तन भी बेबा हैं, उतार के धोए। अपने कहा हमसे नहीं इतनी पहले खपाई होती, ईद आ रही ईद आ रही, ईद ने आके लोग चेक करना होता, जज करना होता आके कि सफाई सही हुई है कि नहीं। मैं क्या मंजियाँ ज़्यादा गंदियाँ हुई हैं बाहर मिट्टी ना, तो मंजियाँ जो ना धोने हैं। पहले हमें खुद भी बड़ा होता था, ईद आने वाली होती थी ना, कुछ दिन रह जाते थे तो खुशी खुशी में ये होता था कि हम अपने घर को सजाएं, साफ़ सुथरा करें, सारे कमरों का सामान निकाल के सफाइयाँ करना। ये जो आपको पीछे पीला पीला कलर नज़र आ रहा है, चूना घर को करना। और साथ आपको पता है हमारा घर थोड़ा कच्चा है, अभी तो ये सेहन हमारा पक्का हो गया वरना थोड़ा बहुत, लेकिन ये भी पहले कच्चा होता था। यहाँ गोती लगानी, सफाई करनी, पोछा लगाना। ये दीवारें अभी सीमेंट वाली हो गई हैं, ये कच्ची होती थी, कुछ अर्सा हुआ है, अभी ये हमने पक्की कर ली हुई हैं। मिट्टी की होती थी, इनको पोछा लगाना, लिशकाना, कह लें कि अगला वेरा इतना बड़ा, ये भी कच्चा ही है। इधर गोती शोती लगा के पोचे शोचे फेर के कह लें कि पूरे घर को ईद से पहले पहले हमने लिशका देना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने, गाँव में ऐसा ही होता था। अभी तो थोड़े बहुत आहिस्ता आहिस्ता कह लें कि थोड़े बहुत नहीं, काफ़ी घर पक्के हुए बनते जा रहे हैं, लेकिन पहले जब सब लोग के घर कच्चे होते थे ना, सब ऐसा ही करते थे। और सबके घर ईद आने से पहले पहले ऐसे चमक रहे होते थे ना कि दिल करता था कि खाना प्लेट में नहीं, नीचे ज़मीन पे रख के बंदा खा ले। तो कभी कभार ऐसा होता था कि इतनी मेहनत से इससे कुछ दिन पहले ये सारा कुछ करना, पोचे फेरने, चूने फेरने, सारी सफाइयाँ सफाइयाँ कर देनी, सेहनों में गोतियाँ शोतियाँ लगा देनी, और इससे 2 दिन पहले आ जाए ना बारिश, फिर इतनी टेंशन होती थी। अभी फिर अम्मी जी पता क्या करते हैं, तू ही जूदियाँ वड्डियाँ हुई ना, तू ही नहीं आया हो मैनू करन देंदियां ना, तू ही करदियां तो ना मैनू करन देंदियां, तू ही निक्कियां निक्कियां होंदियां तो तुहानू भी सांभनियां, ते नाल गोतियां परोलियां सारा कुछ चूने छूने मैं फेरनी होंदी।
अम्मी फिर लाग पैंदे ने इस तरह इमोशनल करन तो यह ना कि बंदा कम 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 कर करके जो ना खप जाओ तो दफा मारो पर जिन्ना हुंदा ना उन्ना करो तो वैसे तुहानूं पता है कि जिन्ना ही करने आ अपने घर नूं असीं कह लो कि सही साफ सुथरा माशाल्लाह रखिया है ते हाँ सच याद आया कि पहला माशाल्लाह असीं हुनियां भी वावा बड़ियां सा हुण ते वावा बड़ियां नहीं ना लगदियां माशाल्लाह असीं 5 भैणां वां उदों रल मिल के कट्ठियां सारियां एडे वड्डे घर च कह लो कि गोतियां पोचे शोचे फेर लैने हाँ हूँ भी माशाल्लाह तिन्ना दी हो गई शादी तो मैं तो बाजी बिल्ली कलियां बेचारियां की करी ते ठंडा पानी पी मरीए साढ़े को नहीं इन्ने कम्म हुंदे जिन्ने हुंदे ना उन्ने ही हुंदे ने तो उन्ने करने ने कुर्बानी वाले बच्चे का हार जो डाला हुआ था ना गले में 2-3 दिन के बाद हार खुद ही उतर के ना नीचे गिर गया है वो उसके पैरों के नीचे आया ऐसे बैठ के जब उठता है ना उसके पैरों के नीचे आता है तो वो नीचे गिर गया तो इसकी एक बात बताओ ये करता है भला क्या अभी देखना माशाल्लाह सही सही चारा खा रहा है जब ये सही रज रुझ के खा खू लेता है ना खुरली खाली हो जाती है ना खुरली को टक्कर या ठुड्डू मार के ना ऐसे नीचे गिरा देता है और आराम से बैठ जाता है तो अब्बू जी फिर दोबारा इससे चारा डालते हैं फिर आराम सुकून से उठ के ना फटाफट फिर खाने लग जाते हैं फिर खा पी के खुरली खाली हो जाती है ना फिर ठुड्डू मार के ना तो हमने ये वाली खुरली गिरा के आराम से बैठ जाता है इतना ये कह लें कि शरारती बच्चा है हमारा अभी भी माशाल्लाह सही खा रहा है दिल लगा के ये जो ये नीचे गाह भी पड़ा हुआ है ना इसने पहले ऐसा किया था खा खू कर रज रुझ के जब रज गया है थोड़े से रह के ठुड्डू मार के इसने ये नीचे गिरा दी है तो ये ना नीचे सारे पट्टे खिलरे हुए हैं तो अभी मैं नीचे वो पकड़ने नहीं जा रही कि टक्कर ही ना मार दे क्योंकि डर थोड़ा थोड़ा लगता है ना इसके मुंह से देख के वैसे भी आपको पता है माशाल्लाह से हमारे घर जानवर हैं हमने जानवर रखे हुए हैं सामने नज़र तो नहीं आ रहे वो जो कमरा है ना उसके नीचे है तो ये स्पेशल मतलब लिया गया ना कुर्बानी के लिए तो इसका अलग ही मतलब दिल में खुशी खुशी है तो जो भी आता है कोई पानी दे रहा होता है कोई मतलब आगे चारा डाल रहा होता है वो एक होता है ना कि भाई ये नवा जानवर लिया है उस फिर लिया भी कुर्बानी वास्ते वे तो कोशिश है कि जिन्नी दी खिदमत हो सकती है ना करो जरा करा सब की कोशिश यही होंगी कि मैं इनू पानी जाके दे अगे रखा मैं अगे पट्ठे पावां मैं इनू इस तरह करा मैं चीज़ दे अगे रखा तो सारे जने रल मिल के यदी वावा खिदमत करते हैं पे बड़ी ईद से पहले गर्मी ने अपनी सही अच्छे वाली कुंडी जो है ना आके खटखटा दी है अभी इतनी गर्मी लग रही है ईद वाले दिन भाई सब हमारी क्या हालत होगी जिस दिन बकरे दबा होने हैं बच्चे दबा होने हैं फुल टीटी पापा हो जानी है ईद इंजॉय करने वाला तो माइंड बनाया नहीं है अपनी फुल टीटी पापा करवाने वाला कहने के आपको पता है काम 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 और काम होने हैं साथ अगर तो हुई ज़्यादा गर्मी तो फिर कह लें कि फुल टीटी पापा हो जानी है चलें कोई नहीं खैर ही है देखते हैं फिर ज़िंदगी रही तो क्या सूरत हाल बनती है जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा तो ये थी मेरी आज की छोटी सी मज़ेदार वीडियो की आज पर भी आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाकी खुश रहा करें अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखा करें कोई भी गलती हो तुम्हारा तो याद रखिएगा मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल वाली वीडियो में ज़ैनब बाजू को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़।